Children, in this video, we are going to discuss the next type of animal tissue, and that is the connective tissue. Connective tissue is the most abundant and widely distributed animal tissue. We have studied in last lectures that there are 4 types of animal tissues: epithelium, connective, muscular and nervous. So if we compare the distribution of this connective tissue with other 3 animal tissues, then we can easily observe that most of the body parts are occupied by the connective tissue. So we are saying that it is the most abundant tissue in animals. Now why we are calling it connective tissue? This name is given to this tissue because it connects various body parts. It helps in maintaining a link between different types of tissues and organs. That's why it is connective. And it is also sportive in nature. It provides a framework to the body parts. There are number of types of connective tissue, and we are going to discuss brief description of all those connective tissues, but in this lecture we will study the general features of a connective tissue. Connective tissue has mainly 2 components. If we study what type of components are present in a typical connective tissue, then we can say that it has 2 components. One is the cellular component, and which is the living content actually, and other is the non-living content. अब ये समझने के लिए एक बार आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. यहाँ इस डायग्राम में हमने एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस दिखाया है. एक्चुअली दिस इज द ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, and you can also see that here I have drawn the thread like structures. यहाँ पे आपको ये कुछ thread जैसे structures दिखाई दे रहे हैं. These are the thread like structures. And you can also observe that here are a different types of cells which are shown in this diagram. कुछ cells यहाँ पर दिखाई गई हैं. And these cells are of various types. Like ये एक अलग type की cell दिखाई दे रही है. This is also different type of cell. This is another type of cell, and these are also cells. So यहाँ पर अलग अलग तरह की cells भी दिखाई गई हैं. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ सॉफ्ट टाइप ऑफ, और द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर टाइप ऑफ कैटेगरी. सेकेंड इज द वस्कुलर टिश्यू, and third is the specialized connective tissue. Means there are 3 broad groups under which this connective tissue can be classified: the connective tissue proper, vascular tissue and the specialized tissue. And when we will discuss the features of all these different types of tissues, then we will study that they all have some common features. सभी connective tissues में कुछ common features होते हैं. जैसे सभी टिश्यूज में एक ग्राउंड सब्सटेंस दिखाई देता है. दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस और द मैट्रिक्स. एंड ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज विल बी हैविंग सम सेल्स, टिपिकल सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू. स्पेसिफिक सेल्स होंगी, क्योंकि टिश्यूज अलग अलग टाइप के हैं तो ये सेल्स अलग अलग टाइप की होंगी. लेकिन ब्रॉडली ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज विल बी हैविंग 2 मेन कंपोनेंट्स: द ग्राउंड टिश्यू और द ग्राउंड मैट्रिक्स एंड द लिविंग सेल्स. ओके, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये किसी भी जर्नल रिप्रेजेंटेशन हम कनेक्टिव टिश्यू के कह सकते हैं. दिस इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज इन दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे आप देखिए, आपको अलग अलग तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं. जैसे ये एक इलोंगेटेड सेल है, इसको हम फाइब्रोब्लास्ट कह सकते हैं. ऐसे ही एक ये सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द मैक्रोफेज. ऐसे यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे सकती हैं. यू कैन ऑल्सो सी द पिगमेंट सेल्स. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, उससे पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि सभी कनेक्टिव टिश्यूज में लिविंग कंपोनेंट सेल्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिए कि सभी कनेक्टिव टिश्यूज के पास एक ग्राउंड मैट्रिक्स होती है, जैसे ये सब्सटेंस दिखाया.
दिस ग्राउंड मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट है, इस तरह की सेल्स इस ग्राउंड मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं। नाउ व्हाट इज स्पेशल इन दिस ग्राउंड मैट्रिक्स? इस सब्सटेंस में क्या है? दिस सब्सटेंस इज एक्चुअली अमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस। अमोर्फस मीन्स इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। अमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस विच इज हैविंग द प्रोटियोग्लाइकन्स और द ग्लाइकोप्रोटीन्स। मेनली यहाँ पर इस ग्राउंड सब्सटेंस में आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स नजर आते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन नोटिस इन दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर्स। आपको यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को इलास्टिन वर्ड से इसका नॉमिनेशन किया है। इलास्टिन इज एक्चुअली नेम ऑफ ए प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलास्टिन या यहाँ पर जैसे एक कोलेजन प्रोटीन है। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन दिस ग्राउंड मैट्रिक्स। वन इज द इलास्टिन एंड अदर इज द कोलेजन। These two types of proteins, collagen and elastin, they provide, these are present in the form of fibers. ये fibers हैं जो इन protein से बने होते हैं। So these fibers provide strength, flexibility and elasticity to the connective tissue. Next videos में जैसे ही आप connective tissues के types पढ़ेंगे, then you will study that there are a number of types of connective tissues like cartilage, bone, lymph, blood, tendon, ligament, areolar and adipose tissue. There are a variety of connective tissues. So what we are saying that all the connective tissues have this ground matrix. This ground matrix is the non-living content or non-living component of the connective tissue. This ground substance is having a number of chemicals secreted by these cells. The chemicals mainly contains the glycoproteins or proteoglycans and the fibers. Fibers which are made up of two main types of proteins, collagen protein and elastin proteins. लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि एक्सेप्ट ब्लड, कनेक्टिव टिश्यूज में हम एक टाइप वस्कुलर टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको आप ब्लड कहते हैं। तो ब्लड के अंदर ये फाइबर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि द मैट्रिक्स इज हैविंग दीज प्रोटीन्स फाइबर्स, सो यू हैव टू मेंशन दैट एक्सेप्ट ब्लड all the type of connective tissues have these fibers, collagen and elastin fibers that provide the connective tissue strength, flexibility and elasticity. Okay, now the living component includes these different types of cells like I have shown macrophages or the fibroblast, pigment cells, adipose cells, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स यहाँ पर आपको अलग अलग टिश्यूज में दिखाई देंगी। ओके, नाउ लेट्स हैव ए लुक व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यू कैन मेंशन दैट इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। जैसे आप कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप पढ़ेंगे बोन, एंड अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द कार्टिलेज। सो बोन एंड कार्टिलेज आर द सपोर्टिव टाइप ऑफ टिश्यूज, दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी and they also provide support. So cartilage and bones are meant for providing support and maintaining a framework of the body. Next is they also provide, this connective tissue provide a sort of protective sheath around delicate organs. जैसे किडनी है या हमारे आई बॉल्स हैं, इन डेलिकेट ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शीथ होती हैं जो किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। और दिस प्रोटेक्टिव शीथ इज मेड अप ऑफ मेनली a type of connective tissue known as adipose tissue. Then it also help in packing between or packing the different tissues or organs of the body. जैसे कोई भी दो ऑर्गन्स हैं उनके बीच की जो स्पेस है उसको फिलअप करने का काम, उसके बीच में एक पैकेजिंग मटेरियल मेंटेन होने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। और इसमें आप एरियोलर टिश्यू का एग्जांपल दे सकते हैं। एंड दीज टिश्यूज ऑल्सो हेल्प इन
एक्टिंग एज ए स्टोरेज बॉडीज, जैसे एडिपोज टिश्यू एक फैट स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ द फैट डिपो ऑफ द बॉडी। ऐसे ही आप ब्लड या लिम्फ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ब्लड और लिम्फ ट्रांसपोर्ट टाइप के टिश्यू हैं, वस्कुलर टिश्यूज हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव these cells like lymphocytes, different types of WBCs are there in the blood and lymph, and that's why the connective tissue act as a defense type of tissue. So there are number of types of tissues, and we will discuss their structures, their specific cells and their functions in next videos.